Namojinadu. Changing role of women in this high-tech modern world. The advent of technology has significantly reshaped social dynamics, particularly concerning women's role. While progress has been made, but many questions remain. How can women effectively balance demanding career in high-tech fields with the responsibilities of family life? And what support systems are necessary to facilitate this balance? Your question is very big and it covers a lot of area and dimensions of women's life. I think you should have made into different questions rather than in only one question. All the same. Now I will reply you first point. Perspective of woman in today's modern world. I will tell you, if you know and understand what is law of nature, then as per law of nature, woman has not changed. She is same. Only thing, if you go back in our history, say 200 years back, role of woman. Woman is a woman, and the role which she had adopted to support her family. It is same today also. Our 100 years back women were working whole day, 24 hours. Today also woman is working whole day and 24 hours. So working woman and family woman, this discrimination itself are totally wrong. That mindset itself is wrong. That shows the home woman does not work. In fact, it is other way around. Woman sitting at home, who is at home, not sitting at home, who is at home, is working round the clock, except sleep hours. She is never stagnant. Rest, if you take out rest hours from woman's life, who is at home, doing different roles for house, she is working almost 18 hours. Just imagine the 18 hours of work. You show me, men, the men who are working 18 hours, they are also excelling. Women working at home 18 hours, they are also excelling. Because today also, whole world, it is not about India, but whole world, situation is same. So women is continuously working, and nature of woman is there. She cannot sit idle. Any woman does not sit idle, and she does not like to sit idle. She would be doing anything or other. Even in this modern day world, the woman who goes to work, they are always on something or other. Yeah. Either at workplace, they are the most honest and integrated personalities in workplace. Management believes more in integrity and honesty of women at workplace. That is not true about men, because woman by nature is integrated and honest to whatever she is in. She is honest about it. Unless and until situation forces her to be out of sync. Situation forces her to go out of way, and that's why she deviates. So your question itself
is not wrong, I can say, because everyone is asking same thing. But the dimension, what I am telling you, is reality of life, which no one has put their mind on. And that's why there is whole confusion. It's totally whole confusion. Today also, yesterday also, day before yesterday, 100 years back, 200 years back, woman has been always proactive. You go to any house, whether working woman house or house who is housewife or housemaker in new terms. Women is always dominating. Why? Am I right? Yeah. Woman is dominating? Dominating with control. Everybody listens to woman in house, at least in India. Yeah. Even outside. I have gone all over world and I have seen the scenario is not different. Okay. Scenario is same. See, man has its own limitation, man has its own strong points, strength, and man has his own weakness. Women has its own strength, women has its weakness. If you evaluate both weakness of man and weakness of women, strength of man and strength of women, women has a holding power given by law of nature. Okay. She can hold number of people much better than what man can do. She has organizing skill. Organizing skill, and she has element of softness, element of giving space to others, element of listening to others, element of responding emotionally to others. These are missing in men. All men. All men are not like that. But in general, if you see, it is missing. And that's why there is confusion about role of women in today's perspective. Today's perspective is no different than what it was 100 years back or 1000 years back. Adaptability of women is fantastic. Our Prime Minister Narendra Modi, he himself said that now women should be there in all spheres of activity of society. Yeah. Why he said like that? Because women has certain characteristics by which she can bring people together. Only because of predominance of male, women are getting back. And men feel insecure in presence of woman. And that's why he tries to dominate. And this is the problem of society. Mentality, you can say. Yeah. So, man does not always prefer to women take a center stage or limelight. He will allow for certain time. After that, he will take over or dominate. That is insecurity of male. वुमेन को ऐसा लगता है कि उसको जो ड्यू रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जो एक सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है. नहीं, वो बात गलत है. हमारे भारतीय परंपरा में तो, भारतीय परंपरा छोड़ो, जहां भी स्त्री खड़ी रहती है वहां, और उसकी एक इमेज होती है which she holds. A woman needs to have her image, strong image. Strong image ये woman के लिए बहुत जरूरी है, because vulnerability of woman is very prevalent in all the societies of world. Vulnerability. So woman should be self-confident of what she is talking, what she is walking, what she is doing, and what she wants to get done from others. Yeah. Once she is very clear in her mind, then there is no problem. It is because of confusion in the mind of woman and not taking certain positions when necessary. That's why people can interfere. Same thing happens with weak males.
If you see weak males who does not stand to their thought processes, to their opinions, to their judgments, to their discretionary system, thought process, who does not stand, they are wavering, they are not recognized, they are nowhere. So it is not about man and woman. Man and woman by nature, law of nature, both are equal. Nature has not discriminated anything. Women, I feel, in fact, little bit, nature is partial to women, because nature has given the power to give birth to woman. That is very powerful. That is very powerful power given by law of nature to woman. She gives birth to male and female both. Yes. She takes care of male and female both equally. So woman is always on a front line. So don't think, see, change the mindset. Once you start your question as if woman is a receiver and male is a importer, you get back. Because you decided, your question only decides. Yeah. Your mindset of question decides that woman is on back foot. And this is everywhere. सब जगह यही चल रहा है. सब लोग यही बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि जहां जहां स्त्री खड़ी होती है वहां स्त्री को सपोर्ट नहीं करती है. सबसे पहली बात तो यहां आती है. जो स्त्री खड़ी हो गई अपना पॉइंट लेकर, अपना विजन लेकर, अपना स्टैंड लेकर, तो उसको स्त्री सबसे पहले उतार देती है. यही सबसे बड़ी समस्या है. तो पर्सपेक्टिव की दृष्टि से अगर देखा जाए, हर इंसान को, अभी मैन वुमन से ऊपर उठ के मैं बता रहा हूं कि हर इंसान को अपना थॉट प्रोसेस इंडिपेंडेंट हो, अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो. क्लैरिटी ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो और क्या करना है, क्या करवाना है, क्या चाहिए और हम किस दिशा में जा रहे हैं, एक इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए. कई बार मैंने देखा है कि स्त्री के अंदर यह क्लैरिटी ज्यादा है पुरुषों से. अच्छा. उसीलिए तो अपने बच्चे को 12 साल तक संभाल रही है माँ. देखो, माँ के स्वरूप में, ठीक है. फिर बहन के स्वरूप में 12 साल के बाद बहन का स्वरूप टेक ओवर करता है, ठीक है. फिर 20-22 साल के बाद पत्नी का स्वरूप टेक ओवर करता है. तो आप कैसे कह सकते हैं कि स्त्री पिछड़ी हुई है या उसका पर्सपेक्टिव अलग है? कुछ नहीं है, सब बराबर है. हमारे सोचने का, देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है. जिस दिन ये हो जाएगा ना, बस ये परम सुख, टोटल वेलनेस, ऑनलाइन, साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल का रोल यही है कि हर स्त्री को, हर पुरुष को, हर छोटी बच्ची को, हर छोटे बच्चे को उनके गुण धर्मों के हिसाब से, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से एजुकेशन देना. ना सिर्फ ये थियोरेटिकल एजुकेशन नहीं देना है, उसे अपने गुणों को समझना है और उस गुणों के हिसाब से अपने आप को एक्सपांड करना है इन रियल लाइफ सिचुएशंस, प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशंस. जिस दिन से ये शुरू हो जाएगा ना, पहले आपका परिवार बदलेगा, फिर आपका समाज बदलेगा, फिर आपका देश बदलेगा. और आपका देश अगर ये बदल के ये विकास होना शुरू हो गया, दूसरे देश देखकर आपकी कॉपी करेंगे. एंड दिस इज व्हाट आई वांट. इंडिया टू बी नंबर 1. हमने मोदी साहब को यही लिख के भेजा है कि अगर हम गुरुकुल की पुनः स्थापना वैज्ञानिक स्वरूप से करें और पूरे समाज को मां के कोख से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु शैया तक
पूरे प्रोग्राम्स तैयार करके लोगों के अंदर जागृति लाए, अवेयरनेस लाए, अलर्टनेस लाए और उस प्रकार जीवन जीने की, उस प्रकार दृष्टि बनाने की ट्रेनिंग दे और वो उस प्रकार देखना शुरू करेंगे तो ये सारी आपकी जो बातें हैं ना, आज वुमेन्स पावर और वुमेन की राइट्स, ऐसी इक्वालिटी की जो बात चल रही है, जो स्त्री वुमेन राइट्स की बात कर रही है, जो वुमेन इक्वालिटी की बात कर रही है, वुमेन पावर की बात कर रही है, वो इनडायरेक्टली ये कह रही है कि आई एम नॉट इक्वल, मेरी राइट्स कम है, मेरे पावर कम है। ये कोई देता नहीं है, अपने आप को प्राप्त करना है, अपने वाणी वर्तन विचार से, व्यवहार से स्थापित करना है। वो स्थापना कैसे करनी, उसका अभाव है। बाकी दुनिया तो विशाल है, आप जैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे, स्त्री हो या पुरुष, दुनिया अपने आप वैसे ही चलेगी। ठीक है, तो ये वर्किंग वुमन, वुमन इज ऑलवेज वर्किंग, वो आपका पहले वो टर्म्स निकाल दो वर्किंग वुमन वाला, क्योंकि वुमन इज ऑलवेज वर्किंग। आप ये बोलते हैं कि पैसे कमाने के लिए जो बाहर जाती है वो वर्किंग वुमन है, तो घर में बैठी हुई क्या नॉन वर्किंग वुमन है? शी इज वर्किंग मोर, बट शी डज नॉट ब्रिंग रेवेन्यू इन कैश फॉर्म। सो ये माइंडसेट जो है ना, वो भी बदलना है, क्योंकि वुमन एट होम इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ फैमिली। हमारी भारतीय परंपरा में स्त्री के अंदर गुण देखकर उसे एक रोल दिया गया था और उसी प्रकार हेल्दी रोल है था, तो बैलेंस अपने आप आ जाता है। स्त्री को अपने गुण धर्मों को, अपनी स्ट्रेंथ को समझाकर उसे विकसित करने की जगह दी जाए, स्पेस दी जाए, रिकॉग्निशन दिया जाए। रिकॉग्निशन कैसे आता है? मांगने से नहीं आता है। विमेन राइट्स, विमेन पावर और क्या इक्वालिटी, ये मांगने से कुछ नहीं आने वाला है, आपके एक्शन से आने वाला है, आपके थॉट प्रोसेस से आने वाला है, आपकी थॉट्स की क्लैरिटी से आने वाला है। ये पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों को सेम चाहिए। तो आपका जो सवाल है वो दुनिया की दृष्टि से सही है, लेकिन जो स्त्री मैं जैसा बोलता हूं उस प्रकार जो भी चलती है, देख लो चारों ओर, जो अपने आप को इंसान समझकर, अपने गुण धर्मों को समझकर, अपनी टैलेंट्स को समझकर, अपनी स्किल्स को समझकर जो स्त्री चल रही है आज भी, वो हर जगह लीडिंग है, पुरुष पीछे है उससे, एंड शी इज मोर एक्सेलेंट देन अदर्स। कॉर्पोरेट लेवल पे आप देखिए, अभी इसरो में आपको बता दूं, इसरो इज द रिसर्च सेंटर। हाँ, चंद्रयान किसने भेजा था? लेडीज की टीम थी पूरी। समझ में आ रहा है? जब चंद्रयान फेल हुआ तो लेडीज टीम वाज क्रिएटेड, लेडीज साइंटिस्ट हु वर एट द बैक स्टेज। सो जब मोदी जी गए इसरो में तो उनका ये एडवाइस था टू द HOD, यू ब्रिंग आउट द वुमेन्स टीम, गिव देम एन अपॉर्चुनिटी। और जो वुमन का डेडिकेशन है वहां दिख गया। आज आपको पता नहीं होगा कि इसरो के अंदर सिर्फ नहीं, लेकिन इसरो के आसपास कई ऑर्गेनाइजेशन खड़े हो गए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको वुमन लीड कर रही है फॉर स्पेस प्रोग्राम्स। दे आर प्राइवेटली लॉन्चिंग सैटेलाइट्स फॉर आउटसाइड इंडिया पीपल। यस, यू आर नॉट अवेयर। ये किसने किया? स्त्री ने किया। तो आपको स्त्री का पावर क्या है, शक्ति क्या है, उसे पहचान कर उसको जगह देनी है। पुरुष का शक्ति क्या है, पुरुष का पावर क्या है, उसे देखकर उसको जगह देनी है। ये जो चैनलाइजिंग ऑफ इनर एनर्जीज ऑफ वुमन एंड मैन, ये प्रॉपर तरीके से हो नहीं रहा है, हुआ नहीं है। भेड़ बकरे का एजुकेशन पैटर्न है मैकॉली सिस्टम का, जिसके कारण ये सारा गड़बड़ाहट है। हमारी जो भारतीय परंपरा के अंदर पहले
हर इंपॉर्टेंट डिसीजन के अंदर स्त्री का जवाब इंपॉर्टेंट रहता था। जो पुरुष सोच भी नहीं सकता है वैसे वैसे उपाय, इलाज, सॉल्यूशन स्त्री देती है। और जो पुरुष, मेरी लाइफ का अनुभव कहता हूं, जो पुरुष स्त्रियों का सुनता है, कोई भी स्वरूप में हो, सुनता है और फिर अपना जजमेंट अपनी विजडम से, अपनी वाइजनेस से सबका सुनकर प्रॉपर जो गठन करके उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसे कहते हैं स्मार्ट पुरुष। उसे कहते हैं स्मार्ट पुरुष। परम सुख में यही चल रहा है। और ये कौन चला रहा है? भगवान की कृपा चला रहा है। ठीक है, आज की दुनिया में ये नहीं है, लेकिन आप देखोगे अपने परम सुख के अंदर, परिवार के अंदर, परमानंद परिवार के अंदर, अभी गुरुकुल के अंदर जो हमने स्टार्ट किया है, हर जगह सब लेडीज ही दिख रही है। हाँ। पुरुष कहाँ है? क्यों? क्योंकि वो जो स्त्री का जो है ना, लगे रहो मुन्ना भाई एटीट्यूड, यस, फैंटास्टिक होता है। एंड इंटरनली दे एंजॉय, एंड हूएवर एंजॉयज दैट गोज अहेड। वो आगे पीछे नहीं देखता है, इधर उधर नहीं देखता है। पुरुष ऐसा है, थोड़े टाइम करेगा, फिर इधर देखेगा, उधर देखेगा, उधर देखेगा, उधर देखेगा। स्त्री के अंदर ऐसा नहीं है। वो एक बार उसने ठान लिया कि बस ऐसा करना है और ये अचीव करना है, वो लग जाएगी और कर लेगा। ये ब्यूटी है। पर्सपेक्टिव क्या है? ये पर्सपेक्टिव है। स्त्री को अपने आप को पहचानना, ये सबसे बड़ी पर्सपेक्टिव। वो अपने गुण को पहले पहचाने, गुण को पहचाने, अपने रोल को पहचाने, और मुझे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है वो स्वयं को करना है। लेकिन उसके लिए एक एजुकेशन की पैटर्न ऐसी चाहिए जो उसे जगह दे। ऐसा जगह के लिए, इसी के लिए हम गुरुकुल स्थापित कर रहे हैं। साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल। ये शब्द क्या है? साइंटिफिक मीन्स व्हाट? एज पर लॉ ऑफ नेचर। जब तक आप लॉ ऑफ नेचर से नहीं चलोगे तो ये सारी विसंगतता जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड की है, जिस आपका सवाल भी पाश्चात्य ही है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सवाल बार बार आते हैं। फाइट्स का आता है, ये का आता है, ये क्या है? सब जरूरी ही नहीं है। उसको रूट में से निकालने की जरूरत है। थॉट प्रोसेस, माइंड इग्निशन, माइंड सेट, माइंड एटीट्यूड, वहां पर उसको बदल करने की जरूरत है। ये किसी ने दिया नहीं आज तक वेस्टर्न वर्ल्ड में। और आज का जो एजुकेशन पैटर्न है, सोसाइटी है, उसने ये पर्सपेक्टिव देखा ही नहीं है। जो नए जनरेशन के लड़के लड़कियां हैं, उनके पास पर्सपेक्टिव कहां है? व्यू पॉइंट कहां है? वेरिएशन कहां है? क्योंकि एजुकेशन ने दिया नहीं है, समाज ने भी नहीं दिया है। क्योंकि समाज उसी एजुकेशन से खड़ा हुआ है, वन साइडेड व्यू पॉइंट से। वो बनाया ही गया है ऐसे। मैकॉली सिस्टम, इन ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज मेड टू मेक यू फूल्स, टू मेक यू क्राउचर्स, वर्कर्स। उसको आपको इंडिपेंडेंट बनाना ही नहीं था, इसलिए ऐसी पैटर्न आई है। और इसीलिए आप इतिहास में बैक साइड में जाओगे तो पता चलेगा कि ब्रिटिशरों ने 1825 में मैकॉली ने ये तय किया, सबको बताया उनकी पार्लियामेंट में कि हाउ टू ब्रिंग चेंजेस इन इंडिया। यू कैन नॉट बीट दैट सिस्टम because it is well settled system. So what we need to do is kill their culture. So सबसे पहले उन्होंने गुरुकुल को पे अटैक किया, गुरुकुल पे अटैक किया, आश्रमों पे अटैक किया और सब गुरुओं को खत्म किया। फिर रूल लाए, लेजिस्लेशन लाए, साथ में अपनी स्कूल, चर्च और अस्पताल एस्टैब्लिश की कि दवाई होगी तो इस अस्पताल में होगी, स्कूल होगी तो ये, जो भी इसके विरुद्ध जाएगा उसको हम दंडित करेंगे। तो ये रिवॉल्यूशन 1825 से शुरू हुआ। आज हम 2025 में 200 साल हो गए। ठीक है, एक्चुअल रिवॉल्यूशन एजुकेशन में, रिवॉल्यूशन की शुरुआत मोदी जी के आने के बाद हुई।
people started thinking in a different perspective. ये हम कर सकते हैं. आज भी देखो लोग हैं ये ओपोजिशन वाले जो दिखा रहे हैं, उसको भरोसा ही नहीं है कि ये सब हो सकता है. पहले बोलते थे ये होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, अब हो रहा है तो बोलता है ये सब झूठ मूठ का है, ये ऐसा है, वो वैसा है. आज भी वो अटैक कर रहे हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण. और वो कौन है? वेस्टर्न वर्ल्ड के दलाल है, जो भारत को विकसित स्वरूप में देख ही नहीं सकते, देखना नहीं चाहते हैं. और उसके पीछे शक्ति कौन सी है? उन्हीं की है, पैसे, मनी पावर एंड मसल पावर. So unless and until we don't educate ourselves in a proper way, and that education pattern has to be set right. उसकी शुरुआत हम कर चुके हैं. परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक ऑनलाइन गुरुकुल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ नेचर. ये हर शहर में, हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टावर में, हर हाउसिंग सोसाइटी में होना जरूरी है. नमस्कार. क्या आप फाइनेंशियल इश्यूज से, प्रॉब्लमों से जूझ रहे हो? फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा है आपका, या आप कर्जे में डूबे हुए हो, या फिजिकली आपको बहुत तकलीफें हो रही है, लाइक पेन्स, बॉडी पेन्स, माइग्रेन्स, डिजीजेस, ऐसे सारे प्रॉब्लमों से आप जूझ रहे हो, या आपके रिलेशनशिप ब्रेकडाउन के तगार पर खड़ा हुआ है अपने लाइफ पार्टनर से, या बिजनेस पार्टनर से, या फ्रेंड्सों से, क्लोज फ्रेंड से, या किसी से भी, अपने पेरेंट्स से या अपने भाइयों से. ये सारी समस्या हमारे रोज बरोज के जीवन में आती है, और इस समस्या का हल आपको साइंटिफिक वे से, साइंटिफिक अप्रोच से, एज पर लॉ ऑफ नेचर, परमानेंट सॉल्यूशंस मिलेंगे. हमारा ये गुरुकुल परम सुख टोटल वेलनेस साइंटिफिक गुरुकुल, जो आपको फिजिकल फिटनेस, वेलनेस के बारे में एजुकेट करेगा वर्कशॉप के माध्यम से, इमोशनल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, relationship wellness, family wellness, social wellness and spiritual wellness. All the wellness is at under one roof. This is the only platform which gives you right guidance as per law of nature, counseling as per law of nature, processes as per law of nature, which will lead you to the permanent solutions of your life and make your life wonderful, blissful, cheerful. लिए अपने जीवन को प्रॉस्परस बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए ज्वाइन कीजिए, क्लिक कीजिए रजिस्ट्रेशन बटन पर, जिसमें आपको 99 रुपये का डोनेशन देना है.